ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس کے کمرے کے باہر مردوں کا بے شمار رش لگا ہوا تھا۔ ایک کے بعد ایک اس کے کمرے میں جاتا اور مقررہ وقت گزار کر باہر آ جاتا۔ مردوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا جو ہاتھوں میں مختلف قسم کے قیمتی اور حسین تحفے اور تحائف لیے کھڑے تھے۔ وہ باری باری جاتے، اپنا مقررہ وقت پورا کرتے اور آتے وقت تحفے اس کی نظر کراتے۔ ہر ایک کی زبان پر اس کا ہی نام تھا، ہر کوئی اسی کے گیت ہی گا رہا تھا، سب اس کی تعریفوں کے پل باندھتے جا رہے تھے۔ ہر ایک کی زبان پر اسی کا قصیدہ تھا۔ مرد تو مرد، وہاں تو عورتیں بھی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کمرے میں نہ جا رہی تھی۔ وہ ایک طرف بنے بینچوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت انہیں اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ ان میں سے کچھ بیٹھے بیٹھے اونگ رہی تھیں اور کچھ اپنی نظریں ان مردوں پر مرکوز کیے ہوئے تھیں۔ یہ اس کی خاص عورتیں تھیں۔ ایک دوسری کے کان میں گھسی تھی، لگتا نہیں ہے کہ آج بھی ہماری ملاقات ہوگی۔ دیکھ تو صحیح، کتنے مرد ہیں یہاں، کیا انہیں گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا جو بھاگے بھاگے یہاں چلے آتے ہیں؟ نہ جانے ایسا کیا دکھ گیا ہے انہیں یہاں۔ ایک نے مردوں کی لمبی قطاروں کو دیکھتے ہوئے کہا، ارے دیکھا ویکھا کچھ نہیں ہے، انہیں تو وہ ملتا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہاں بہن، صحیح کہہ رہی ہو تم، مجھے تو لگتا ہے ہمیں ابھی چلنا چاہیے، یہ قطاریں تو بمشکل صبح تک ہی ختم ہوں گی۔ ہاں مشکل ہی لگتا ہے، اس کو وقت تھوڑا کم کر دینا چاہیے، یوں ہی اتنی دیر ایک ایک کو دیتی رہی تو بہت مشکل ہو جائے گا، ایسے تو سویرا پھوٹ جائے گا۔ کاش میں اس کی جگہ ہوتی تو میرے پاس بھی یوں ہی رش لگا ہوتا۔ مرد عورتیں سارے میرے آگے پیچھے گھومتے، ہائے میری تو زندگی ہی بدل جانی تھی۔ وہ دونوں عورتیں اب خود سے اندازے لگا رہی تھیں۔ ان کا موضوع گفتگو کمرے میں موجود عورت ہی تھی جو 12 بجے سے مردوں سے ملاقات کر رہی تھی اور اب تقریباً 3 سے کچھ اوپر کا وقت ہو گیا تھا، لیکن وہاں فکر تھی۔ وہ تو سب سے بے نیاز اپنے کام میں مگن تھی، اسے کوئی پرواہ ہی کہاں تھی، کون کیا کہتا ہے کیا نہیں۔ جانے کیسی عورت تھی جو شوہر کے مرنے کے بعد راتوں کو مردوں سے ملاقات کرتی اور ان سے تحفے و تحائف وصول کر رہی تھی، اور اس پر اسے کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ نہ جانے وہ ایسا کیا کرتی تھی کہ سارے مرد عورتیں اس کے سامنے بچھے بچھے جاتے تھے۔ موسم سہانا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، فضا میں ایک سکوت سا چھایا ہوا تھا۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں اپنی عادت سے مجبور گھر سے چہل قدمی کے لیے نکل آئی تھی۔ میری یہ عادت نہ جانے کب سے تھی۔ رات کو سونے سے پہلے میں لازماً چہل قدمی کیا کرتی تھی، لیکن اماں کو میری اس عادت سے نہ جانے کیوں چڑ سی تھی۔ آج بھی میں ان سے نظر بچا کر نکل رہی تھی کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ کہاں چلی ہو لیڈی ڈیانا، اس وقت گھر سے باہر مت جانا، اپنی یہ چہل قدمی کا شوق گھر میں ہی پورا کرو، نہیں تو صبح کر لینا، لیکن ابھی کمرے میں آؤ۔ میں چاروں ناچار اماں کے پیچھے چل پڑی۔ اماں مجھے جانے دیں، آپ کو پتہ ہے اس طرح مجھے نیند نہیں آئے گی، اور پھر میں صبح وقت پہ نہ جاگی تو بھی آپ ڈانٹیں گی۔ یہ دروازہ کھول کر جاؤں گی، 10 منٹ میں واپس آ جاؤں گی، آپ اس دروازے سے دیکھتی رہنا، پوری گلی نظر آتی ہے یہاں بیٹھ کر۔ میں نے اماں کو موڑھا ایک طرف رکھ کر اس پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ اماں نہ کرتی رہیں، مگر میں عادت سے مجبور باہر نکل پڑی۔ یہ چہل قدمی اپنے محلے کی اکلوتی گلی میں ہی ہوتی تھی۔ تقریباً سبھی ایک دوسرے سے واقف اور جاننے والے تھے۔ میں دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی ہوئی ہوا کو سانس کے ذریعے اپنے اندر تک اتارتی چل رہی تھی۔ کچھ لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، جبکہ کچھ ابھی جاگ کر کھٹ پٹ میں مصروف تھے۔ اس بات کا اندازہ گھروں میں جلتی بتیوں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا تھا۔ میں آرام آرام سے چلتی تھوڑا سناٹا ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وجہ مولوی صاحب کے گھر کی تانکا جھانکی کرنا تھا۔ میں بار بار مڑ کر اپنے گھر کے اندر بھی نظر ڈال رہی تھی۔ اماں کچھ دیر تو بیٹھی مجھے دیکھتی رہیں، پھر وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کسی کو نہ پا کر میں نے مولوی صاحب کے گھر جھانکنے کی کوشش کی۔ مولوی صاحب ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے، لیکن ان کا 6 مہینے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اب اس گھر میں مولوی صاحب کی بیوی اور ایک 5 سال کا بیٹا رہتا تھا۔ مولوی صاحب کی موت کے بعد کا واقعہ ہے۔ ایک رات میں جب وہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے بہت عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب کے کمرے سے بھانت بھانت کی ڈھیروں آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ مولوی صاحب کی بیٹھک تھی۔
जहाँ वो अपने मिलने मिलाने वाले लोगों के साथ बैठते थे। अब यहाँ से इतने मर्दों की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? मैंने दीवार से झांकने की कोशिश की, लेकिन दीवार ऊंची थी। दीवार और कमरे के दरमियान बमुश्किल 4 या 5 फुट का फासला था। मैंने 2-3 बार उछल कर भी देखा, लेकिन इससे पहले कि मेरी नज़रें दीवार के पार देखती, मैं वापस से ज़मीन पर आ रहती। लेकिन यहाँ से ये आवाज़ें आना मुझे हैरत में डाल रही थी। बेख्तियार मैंने अपने दोनों हाथ कानों को लगाए। तौबा तौबा, अल्लाह हर एक को शर्म और पर्दा दे, आमीन। कहते हुए मैं वहाँ से चल पड़ी, क्योंकि दीवार से दूसरी तरफ देखना मेरे लिए हाथी को सुई पर बिठाने के मुतरादिफ था। लेकिन न जाने क्यों उस दिन के बाद मैं हर रोज़ मारे तजस्सुस के वहाँ जाती और माजरा जानने की कोशिश करती, लेकिन नाकाम हो जाती। न जाने क्यों मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। मौलवी साहब तो बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। उनकी हयात में तो इस औरत ने कोई ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन हो सकता है कि वो उनके मरने का ही इंतज़ार में हो। कैसे उनके मरते ही इस औरत ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए थे। कैसे कैसे रंग बिरंगे लोग उसके घर से निकल रहे होते। क्या उसके अंदर खौफे खुदा ख़त्म हो गया था? न जाने ऐसे कौन से मंतर पड़ रही थी जो लोग उसके पीछे पागल हुए जा रहे थे। मैं आज भी नाकाम ही रही थी। अब इससे पहले कि अम्मा बाहर आकर मेरी इज्जत करके मुझे घर ले जाती, मैं खुद शराफत से चलती हुई अपने घर में दाखिल हो गई। मेरा जहन मुसलसल कुछ न कुछ ताने बाने बुन रहा था। कुछ तो था, मुझे पता करना था। मेरे जहन में शक का कीड़ा कलबला रहा था और दिल में मौजूद तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा था। अगली सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए घर से निकली तो बेख्तियार मेरी नज़रें खुद ब खुद मौलवी साहब के घर की तरफ उठीं। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। वहाँ 3 मर्द खड़े थे। उनसे चंद कदम के फासले पर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। यकीनन ये गाड़ी उन्हीं की थी। उनकी आंखें रात जगे की वजह से चुगली खा रही थीं, जबकि उनके चेहरे पर शदीद इज़्तिराब था। वो बार बार इधर उधर मुड़कर देख रहे थे। मैं हैरान ज़दा सी रह गई थी। मेरा दिमाग जो सोच रहा था, क्या वो सच था? क्या अब ये औरत इतना गिर गई है कि अब यूं दिन दहाड़े भी लोग इसके दरवाजे पर बेखौफी से आकर खड़े हैं? आखिर क्या कर रही थी ये औरत? उसके लिए ये लाखों की मालियत के इतने महंगे महंगे तोहफे क्यों लाए जा रहे थे? मुझे कॉलेज से देर हो रही थी, लेकिन न जाने क्यों मैं खड़ी उनको देख रही थी। काफ़ी देर के बाद भी जब अंदर से कोई जवाब न आया तो शिकस्ता कदमों से वापस गाड़ी की जानिब बढ़े। उनके चेहरे का इज़्तिराब अब मायूसी में बदल चुका था। मैं चुपके से उनके पीछे हो ली। उनमें से एक बोला, मैंने कहा था कि हमें देर हो गई है। वो सिर्फ रात को ही मुलाकात का शर्फ बख्शती हैं, सुबह के वक्त वो ये सब नहीं करती। दूसरे ने मायूसी से सर को इस बात में हिलाया और बोला, काश मैं उससे मिल सकता। मैंने बहुत सुना है उसके बारे में। कमाल की औरत है। उसके हाथों में तो जादू है। जिस चीज़ पर हाथ रखती है वो चीज़ भी उसके छूने पर रश्क करती होगी। उसके लहजे की तासीर ही इतनी है कि लम्हा लगता है काम होने में। मुझे पहले यकीन नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे खुद उसके बारे में अपना तजर्बा बताया है और वो मेरा आंखों देखा हाल है। उसके बाद से ही मैं उसका मुरीद हो गया हूँ। कितनी ख्वाहिश थी मुझे उससे मिलने की, लेकिन वो फिर से अफसरदा हो गया था। दूसरे ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि फ़िक्र ना कर मेरे यार, तेरे जैसे उसके कितने ही मुरीद हैं। सबको ही वक्त देना होता है। अब तू इकलौता तो नहीं है कि जब तू कहे तुझसे मुलाकात के लिए बुला ले। हौसला कर मेरे भाई, वो सुनेगी, तेरी बात भी सुनेगी और तुझसे मुलाकात भी करेगी, लेकिन सबको साथ लेकर चलना पड़ता है ना। खैर अभी तो उदास ना हो, हम शहर के होटल में ठहर जाते हैं। आज की रात अपनी ही है, हम वक्त पर आ जाएंगे। वो तीनों काफ़ी देर गाड़ी के पास खड़े रहकर बातें करने के बाद अब गाड़ी के दरवाजे खोलकर उसमें बैठ गए थे। पीछे मैं मज़ीद तजस्सुस में घिर गई। मैंने वक्त देखा तो कॉलेज का वक्त निकल चुका था। अब ऐसे में अगर कॉलेज जाती तो वहाँ से बेइज्जती, और अगर वापस घर जाती तो अम्मा के हाथों जलालत। कुछ सोचकर मैंने अपने कदम अपनी सहेली के घर की जानिब मोड़ लिए। उसकी शादी तय हो गई थी, इसीलिए वो कॉलेज नहीं जा रही थी। अभी मैं उसके घर की तरफ बढ़ ही रही थी जब कुछ सोचकर पीछे पलटी। अब मेरे कदम मौलवी साहब के घर के चारों जानिब गर्दिश कर रहे थे। मैं कोई ऐसी चीज़ तलाश कर रही थी जिससे मैं दीवार की दूसरी तरफ देख सकूं। मैं चारों जानिब मुतनाशी नज़रों से देख रही थी। काफ़ी देर तलाश के बाद भी जब मुझे कोई काबिल मदद शय न मिली तो मैं चिड़चिड़ा कर रह गई। आह,
कैसे पता करूं? अब क्या करूं? धूप सर पर चढ़ाई थी, अब तो प्यास भी लग रही थी। मैं चारों नाचार अपनी सहेली के घर चली गई। दरवाज़ा उसी ने खोला था। मैंने जल्दी से अपना कॉलेज का बस्ता उसे थमाया, उससे पहले कि कोई देख लेता और 100 सवाल करता कि कॉलेज के बजाय यहाँ क्यों आ गई। मसला सिर्फ बस्ते का ही था, बाकी तो मैंने बुर्का पहना हुआ था, तो किसी को पता नहीं चलना था कि मैं घर से कॉलेज जा रही थी या फिर इधर आई हूँ। मैं अपनी सहेली के साथ अंदर आई। उसने मुझे परेशान देखकर पूछा तो उसने कहा कि इस बारे में तो मैं भी कहीं दिनों से सोच रही हूँ यार, ये मौलवी साहब की बीवी को आखिर हो क्या गया है। मैंने उसे अपने इतने दिनों की सारी रिसर्च के बारे में बता दिया। फिर उसने मंसूबा बनाया कि हम भी वहाँ जाने वाली औरतों में शामिल होकर अंदर चले जाते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि अंदर क्या चल रहा है। हम दोनों अपने ही मंसूबे बनाए जा रही थी, ये जाने बगैर कि वहाँ जाकर हम पर जो क़यामत टूटनी है उसके बाद हम किसी से नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। काश कि हम वहाँ ना जाती, लेकिन खैर, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। हमारी किस्मत में भी कुछ लिखा जा चुका, कुछ ऐसा जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आने वाले वक्त से बेनियाज अपने ही लाया अमल बना रही थी। वो उठी और मेरे लिए चाय वगैरह लेकर आई। कॉलेज की छुट्टी का वक्त होते ही मैंने उससे इजाज़त चाही। वो मुझे छोड़ने दरवाजे तक आई और मेरा बैग बगल में चादर के नीचे छुपा कर लाई। मैं घर आ गई और रात का इंतज़ार करने लगी। रात होते ही जैसे ही चहल पहल ख़त्म हुई, मैं चुपके से बाहर निकल गई और कदम मौलवी साहब के घर की तरफ बढ़ा दिया। उनके घर के पास पहुंचते ही मैं अचानक ठुठक कर रुकी। अंदर से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो इंतहाई तकलीफ़ में लग रही थी। उसकी आवाज़ से उसका दर्द महसूस किया जा सकता था। मुझे बड़ी तशवीश हुई, ये औरत क्यों रो रही है। मेरा दिल अंदर जाने का किया, लेकिन मैं अकेली अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरी सहेली ने 2 दिन बाद आने का बोला था। मैं दिल महसूस कर रह गई। अब मेरे दिल में एक नई बात ने सर उठाना शुरू कर दिया था कि शायद मौलवी साहब की रात के वक्त कुछ अशियाँ फ़रोख्त करती है, तभी तो लोग दूर दूर से आते हैं और उससे वो लेकर उसे रकम और तोहफ़े देकर जाते हैं। न जाने उसने रात के अंधेरे में ऐसा कौन सा कारोबार शुरू किया है जिससे ये लाखों कमा रही है। मेरे अंदर तजस्सुस का नया पौधा पैदा हो गया था। अब मुझे बेचैनी से 2 दिन गुजरने का इंतज़ार था, लेकिन ये 2 दिन मेरे लिए 2 सदियों के बराबर हो रहे थे। मुझसे इंतज़ार करना मुश्किल हो गया था। तजस्सुस था कि बढ़ता ही चला जा रहा था और अब तो सब्र का दामन भी छूटने लगा था। अल्लाह अल्लाह करके आखिर 2 दिन गुजर गए। आज मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया और खिलाकर अम्मा को जल्दी सुला दिया था। हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी फुर्ती देखने लायक थी। मुझे पता था कि मेरी सहेली ही होगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो अपने भाई के साथ खड़ी थी। उसका भाई उसे अंदर करके वापस चला गया। वो घर वालों को आज रात मेरे साथ मेरे घर रुकने का बता कर आई थी। मैं उसे अंदर ले आई। मैंने उसे जूस पिलाया। तब तक मैं भी तैयार हो गई थी। मैंने एक नज़र अम्मा के सोए हुए वजूद पर डाली और धीरे से उनके कमरे का दरवाज़ा बंद किया और चलते हुए बाहर आई। वक्त देखा तो तकरीबन 11:30 का वक्त था। मैं उसे साथ लिए बाहर निकली। हमने अपने चेहरों को अजीब अंदाज में ढांप रखा था ताकि कोई भी हमें पहचान ना पाए। हम अपने घर से निकली और उधर उधर देखते आगे की तरफ बढ़ी। हमारे दिल अनजाने खौफ के तहत लरस रहे थे। टांगों पर कपकपी तारी हो गई थी, लेकिन तजस्सुस था कि फिर भी चैन लेने नहीं दे रहा था। हम खरामा खरामा चलती हुई मौलवी साहब के घर के आगे पहुंच गईं। आज दरवाज़ा मामूल से हटकर खुला हुआ था। अब हम दोनों एक तरफ छुपकर इंतज़ार करने लगीं कि कोई आए तो उसके साथ ही उसकी आड़ लेकर अंदर दाखिल हो जाएं। कुछ ही देर बाद हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। वो 5 औरतें थीं जो मौलवी साहब के घर की तरफ आ रही थीं। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगीं, हम दोनों भी नामहसूस अंदाज में उठकर उनके साथ ही अंदर दाखिल हो गईं। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुईं, हम चकरा कर रह गईं। हमें ऐसे लगा जैसे हम किसी पार्क या किसी तकरीब में आ गई हों। हम फौरन से कमरे की जानिब मुड़ी और दीवार की ओट में हो गई। उस वक्त एक खिड़की थी जिसे बैठक का मंजर बआसानी देखा जा सकता था। हम दोनों जाकर उस खिड़की के पास खड़ी हो गईं, लेकिन जो ही खिड़की के अंदर देखा तो नज़र आने वाले मंजर ने हमारे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। हमारे सर पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। जिस्म एक जगह जम गया। हमारे हवास शल हो गए थे। हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें क्या ना करें। नजर आने वाले मंजर ने हमारे चेहरे के रंग उड़ा दिए थे।
हमारे हाथों के तोते उड़ गए थे। हम हैरत और बेयकीनी से कभी अंदर के नजर आने वाले मंजर को देख रही थीं और कभी एक दूसरे को। हमारी कुव्वत गोयाई जैसे किसी ने सल्ब कर ली थी। हमें अपनी टांगों पर खड़ा रहना मुश्किल लग रहा था। उस मंजर ने हमारी दुनिया ही हिला दी थी। हमें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। हमारी नज़रें मज़ीद अंदर न देख सकीं और ख़ुद ब खुद झुक गईं। हमें ज़िंदगी में पहले कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी जितनी इस वक्त हो रही थी। हम दोनों एक दूसरे से नज़रें भी ना मिला पा रही थी। हमने जो अंदर देखा था उसके बाद कैसे हम एक दूसरे की आंखों में देख सकती थीं या बात कर सकती थीं, क्योंकि अंदर। मेरा नाम अमरीन है। मैं मियाँ वाली के रहने वाली हूँ। मेरे अब्बा हयात नहीं हैं। मैं अपनी अम्मा के साथ रहती हूँ। हमारा अपना घर है। मेरी उम्र 17 साल है और मैं कॉलेज में 11वीं जमात की तालिब इल्म हूँ। मेरे अब्बा गवर्नमेंट मुलाजिम रिटायर थे, इसलिए उनकी अच्छी खासी पेंशन आ जाती थी और थोड़ा बहुत मेरी अम्मा भी कपड़े सिलाई करके निज़ाम चला लेती थी। ये कहानी हमारे मोहल्ले के मरहूम मौलवी साहब के घर की सच्ची कहानी है। मौलवी साहब मौलवी होने के साथ साथ पीर और मुर्शिदी भी जानते थे, इसीलिए अक्सर उनके पास मोहल्ले के और आसपास के लोग मशवरे के लिए आते रहते थे। मियाँ वाली और उसके आसपास मौलवी साहब का खूब नाम होता था। मौलवी साहब चूँकि साहिबे इल्म थे तो उनके पास काफ़ी लोग आते थे, इसीलिए मौलवी साहब अपना ज़्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारते थे। वहीं पे लोगों के मसले सुनते थे। घंटों घंटों वो मस्जिद में बैठे रहते थे। जब कभी घर में होते तो तब घर में भी अच्छी खासी चहल पहल होती थी। ज़िंदगी अपनी रफ्तार से गुजर रही थी जब एक दिन अचानक मौलवी साहब का बुलावा आ गया और वो सब छोड़ छाड़ कर इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। उनके घर की रौनक आहिस्ता आहिस्ता मद्धम पड़ने लगी, लेकिन उनकी मौत के बाद 5वें महीने में ही उनके घर दोबारा से रश लगने लग गया था। वजह कुछ ख़ास समझ न आ रही थी और जो आ रही थी उस पर यकीन करना मुश्किल था। अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसी ही कोई बात हुई तो मौलवी साहब का सारा नाम, सारी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। उनके घर रात 10 के बाद सुबह तकरीबन 4 बजे तक रश रहता था। कुर्बो जवार के सभी लोग ही तकरीबन वहाँ पाए जाते थे और मौलवी साहब की बीवी के पास दिन ब दिन पैसे और दौलत होती जा रही थी। मोहल्ले के तकरीबन सभी लोग उसके उन मशकूक हरकत से आहिस्ता आहिस्ता वाकिफ़ होते जा रहे थे। हर कोई अपनी अपनी जहनियत के मुताबिक अपनी अपनी सोच और अंदाज़े बयान कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ ज़बानों पर मौलवी साहब की बीवी के लिए कसीदे थे। औरतें तो औरतें, मर्द भी उसकी तारीफ़ें करते न थक रहे थे। न जाने वो ये सब क्यों कर रही थी। मैं भी लोगों की बातें सुनते सुनते और साथ ही साथ मौलवी साहब के घर की सुन लेते ही मेरी जासूसी की रग फड़क उठी थी। अब मैं रोज़ रात को मौलवी साहब के घर के बाहर पाई जाती थी ताकि पता लगाया जा सके, लेकिन कहीं से कोई भी सिरा मेरे हाथ नहीं लग रहा था। तुमने ये काम करना है, तुम कर सकती हो, किसी सूरत इस काम को ना छोड़ना। एक बार अगर तुमने ये शुरू कर दिया तो फिर तुम किसी तौर उससे किनारा नहीं कर सकते। तुम खुद भी पीछे नहीं हट पाओगी। हर तरफ तुम्हारा ही नाम होगा, तुम्हारा ही चर्चा होगा। वो उसे इंतहाई राजदारी से न जाने क्या करने का बोल रहा था, जबकि सामने बैठा वजूद मुसलसल आंसू बहा रहा था। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू किसी तौर पर थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जाने उसे ऐसा क्या करवाया जाने लगा था। न जाने उस पर किस बात की सख्ती की जा रही थी और किस बात पर उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही थी। न जाने ऐसा कौन सा काम था जिसको करने के लिए उसे मजबूर किया जा रहा था। मैं और मेरी सहेली बमुश्किल वहाँ से छुपते छुपाते अपने बेजान वजूद घसीटते हुए वहाँ से निकल आई थी। हमारे दिल अब तक लरस रहे थे। न जाने हमारे साथ अब आगे क्या होने वाला था। हमें जो सज़ा मिलनी थी सोचकर ही रूह कांप रही थी। फ़ज़ा में हल्की हल्की नमी थी। अभी आधा घंटा पहले खूब फुवार पड़ चुकी थी। मौसम खुशगवार हो गया था। चरिंद परिंद सब अपने अपने ठिकानों में छुपे बैठे थे। ऐसे में एक वजूद कमरे में गाँव तकिया लिए उससे टेक लगाकर बैठा था। उसका पूरा कमरा अगरबत्तियों की दिल फरेब महक से भरा हुआ था। उस कमरे की हर चीज़ आला से आला और बेहतरीन से बेहतरीन थी। उस वजूद ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अब उसको यूं बैठे कुछ ही देर गुजरी थी जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मखसूस दस्तक सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। उसने अपनी आंखें खोलीं और अपने अज़ली लबो लहजे में आने वालों को इजाज़त दी। वो दोनों वजूद सर झुकाए अंदर दाखिल हुए और दोनों हाथ सीने पर बांधे
मुअद्दब से अंदाज में एक तरफ खड़े हो गए। अब वो दोनों वजूद पहले से कमरे में मौजूद वजूद के बोलने के मुंतज़िर थे। उन्होंने अपने कान उसी तरफ लगाए हुए थे। वो वजूद कुछ देर तो उन्हें देखता रहा, फिर गला खंगार कर गोया हुआ, जो काम मैंने दिया था पूरा हुआ कि नहीं? मुझे एक एक के बारे में तफसीलात चाहिए। अब कहो क्या खबरें हैं? उसकी बात के जवाब में उन दोनों ने अपने झुके हुए सर उठाए और उससे मुखातिब हुए कि जैसा आपने कहा था सब कुछ वैसा ही आपकी ख्वाहिश के मुताबिक किया गया है। जो और जैसा जैसा आपने चाहा था, उन दोनों की बात सुनकर उसने उन्हें जाने का कहा और ख़ुद सब वो वजूद नीम दराज सा हो गया था। आपको खुदा का वास्ता है कुछ करें, मेरा घर उजड़ जाएगा। मेरी बीवी का मेरे अलावा और कोई नहीं है। हम बहुत मजबूर हैं, बहुत लाचार हैं। 10 साल से मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब तो उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही है। अब आप जो भी करना है आपने ही करना है। बस एक आखिरी बार आपके पास आया हूँ, आपका नाम बहुत सुना है, आपके पास बहुत आस लेकर आया हूँ, मेहरबानी कर दीजिए। वो एक 35 से 40 साल की उम्र का दरमियाने कट काट का मर्द था, जो उससे कुछ फासले पर सर झुकाए बैठा हुआ था और अपनी अर्ज गुजारी कर रहा था। उसने एक नज़र इसे देखा, फिर सर इस बात में हिलाया और बोली, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। काम बनाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, मैं तो बस एक हकीर सी बंदी हूँ उसकी। ये उसकी बड़ाई है कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे वसीला बनाया कि मैं आप सबके काम आ सकूं। मैं तो बस दुआ देती हूँ, दुआ करती हूँ। वो तो शेरक से करीब है, एकदम से दुआओं को सुनकर उन पर कुन फरमा देता है। उसने कहते साथ ही दुआ के लिए हाथ उठा दिए। चंद लम्हे कुछ पढ़ने के बाद उसने आसमान की तरफ फूंक मार दी और उसे तसल्ली देते हुए बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद एक मर्द और औरत अंदर दाखिल हुए। मर्द की गोद में एक बच्चा उठाया हुआ था। वो आकर उसके सामने बैठे और कहने लगे, मेरे बच्चे की उम्र 12 साल है, लेकिन अब तक इसका दिमाग 1 साल के बच्चे जितना है। बहुत इलाज करवा चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि ये ठीक नहीं होगा। बाहर के मुल्क जाकर ऑपरेशन करवाएं। बहुत मुश्किल से आपके पास आए हैं, कुछ करम फरमा दे। वो अपनी जगह से उठी और उठकर उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगी। उसके बाद उसके चेहरे पर फूंक मारी और उसकी माँ से मुखातिब हुई, परेशान ना हो, ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। बस 1 हफ्ते तक बच्चे के साथ यहाँ आती रहना। उन दोनों के जाने के बाद भी कई मर्द और औरतें आईं, जिनमें से कोई अपने मसाइल बताने और कोई अपनी परेशानी दूर होने की खुशी में उसे तहाइफ देने आए थे। ये सब काम मौलवी साहब की बैठक में हो रहा था। क्योंकि मौलवी साहब साहिब इल्म थे तो दमो दरूद का काम भी करते थे। मरने से पहले वो अपनी ये जिम्मेदारी अपनी बीवी को सौंप गए थे। मौलवी साहब की बीवी के हाथों में अल्लाह ने बहुत शफा रखी थी। कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी के मरीज़ भी उसके पास दम और दुआ करवाने आते और 6 ही महीने में उनको अल्लाह के हुक्म से शफा मिल जाती थी। बे औलाद जोड़ों को औलाद का मसला हो या फिर किसी को अपनी नौकरी वगैरह का मसला हो, मौलवी साहब की बीवी की दुआ और दम से हर मसला और मसाइल ख़त्म हो जाते। वो अल्लाह की नेक और परहेज़गार बंदी थी। 5 वक्त की नमाज की पाबंद थी। हर वक्त ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़ रहती थी। उस दिन जब मैंने मेरी सहेली ने खिड़की से अंदर झांका तो जो पहला झटका हमें लगा वो ये था कि मौलवी साहब की बीवी रात के इस पहर भी मुकम्मल हिजाब व नकाब और अबाए में मलबूस थी। दूसरा ये कि उसके हाथ में मुकद्दस किताब कुरान पाक मौजूद थी। हमारी हालत ऐसे हो गई जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरे। शर्मिंदगी से हमारी आंखें झुक गई थीं और दिल पर एक बोझ आन पड़ा था। अंदर वो लोगों के लिए बाइसे वसीला बनी हुई थी और बाहर हम जैसे लोग उल्टी जहनियत रखने वाले ना जाने क्या क्या सोचते जा रहे थे। मुझे बेख्तियार अपने कहे गए और सोचे गए अल्फाज पर शर्मिंदगी हुई। मैंने उस नेक और पाकबाज औरत के लिए कई बार बेहुदा और घटिया अलकाबात सोचती रही थी। जो मैं उसके बारे में सोचती थी, आज उसकी हकीकत सामने आने पर वो सब एक ज़ोरदार तमांचे की मानद मेरे मुंह पर पड़ा था। वो तो अपने शौहर के काम को जारी रखे हुए थी, लोगों की मसीहा थी, और मैं उसके बारे में जाने क्या क्या कहती रही। मौलवी साहब अपनी बीवी को अपना इज़्न दे गए थे और इसकी इजाज़त सिर्फ रात के वक्त ही थी। दिन को उस चीज़ की इजाज़त ना थी। तभी ये सब रात को ही आते थे और वो रात में ही मसाइल सुनती थी। मेरा दिल मुझे चैन ना लेने दे रहा था। मैंने उस नेक और पाक औरत के बारे में गलत सोचा था जो उस पर बोहतान लगाने के मुतरादिफ था।
اور بہتان کی سزا سے میں واقف تھی۔ سو اگلے ہی دن میں نے اپنی سہیلی کو ساتھ لیا اور مولوی صاحب کی بیوی کے پیروں میں جا کر بیٹھ گئی۔ اسے ساری بات بتا کر اس سے معافی مانگی۔ اس نے ہمیں اٹھایا اور بولی کہ تم دونوں نادان ہو، کبھی بھی بغیر تصدیق کیے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو کسی سے کوئی مسئلہ ہے یا کوئی آپ کی نظر میں مشکوک ہے تو بہتر ہے کہ اس سے صاف بات کر کے اپنے ذہن میں موجود الجھن کو دور کر دیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔